There were two headings left in this chapter. So let's start first with principle of reversibility of light. For this, if a ray of light travels from rarer to denser, we very well know it bends towards the normal. Let's say a mirror placed at 90 degree to this ray of light is kept over here. So since this ray will be normal to this mirror, so it will traverse back its same path and it's going to enter the eye of observer, traversing back the same path from which it came. This phenomena is principle of reversibility of light. Now, talking about the expression, first the ray has traveled from air to water. So air to water, when the ray travels, applying Snell's law, we have sin I on sin R. Now, taking the same law, when the ray traverses back, that means from denser to rarer or from water to air, we can say water to air when the ray travels. Now, this R becomes angle of incidence when the ray traverses back, and this I becomes angle of refraction. So now, water to air when the light travels, it becomes sin R on sin I. Multiplying both these equations, my left hand side turns to A and W multiplied by W and A. My right hand side gets cancelled because on multiplying these two terms, sin R cancels sin R and sin I will cancel sin I. That means we are going to get 1. On cross multiplying, this becomes the expression. On substituting air as rarer and water as denser medium, this becomes the expression for principle of reversibility of light. Next heading, students, is real and apparent depth. Now that's the diagram which I have made over here. This is a coin, let's say, placed inside water or a denser medium. This is the eye of observer in rarer medium. These are two rays which start from denser medium. This ray travels undeviated because it overlaps normal. This ray, when it tends to reach C, it traverses away or moves away from normal because it moves from denser to rarer medium. This angle I have taken as I. This becomes angle of refraction R. On taking this ray back, it appears to come from point A. Since this angle is R, this also becomes R because both are corresponding angles. Students, please remember, these rays are diverging rays, so they never meet each other. We never get a real image. On taking it back, this is a point where they appear to meet each other, so this will be the virtual image of this object. So, terming the points as O, A, B and C, and OB over here is the real depth of coin. BA over here is apparent depth of coin. Since ray moves from denser to rarer, रे डेंसर से रेयर जा रही है, इसलिए डेंसर से रेयर जाते वक्त इट बिकम्स साइन आई ऑन साइन आर. कमेंट से मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स ने कहा है हिंदी का भी यूज़ कीजिए, तो अब हिंदी में भी थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. व्हेन रे मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर, जब रे डेंसर से रेयर जा रही है, फॉर्मूला साइन आई ऑन साइन आर लग रहा है. साइन आई का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज. इस ट्रायंगल ओ बी सी में परपेंडिकुलर इज बी सी, हाइपोटेन्यूज इज ओ सी. Similarly, इस ट्रायंगल BAC में sin R इज परपेंडिकुलर BC ऑन AC. ये सब्स्टिट्यूट करके हमको DNR रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब डेंसर से रेयर जा रहे हैं, वी गेट AC ऑन OC. नाउ इफ एंगल्स आर स्मॉल, अगर आप देखें, अगर एंगल्स बहुत छोटे हो जाए, अगर ये एंगल छोटा हो जाए तो ये रे पास आने लगेगी. दैट मीन्स OC विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू OB. Similarly, AC will be approximately equal to AB. अगर ये वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डेंसर से रेयर जाते वक्त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिकम्स AB ऑन OB. अगर मैं इसे इंटरचेंज करता हूँ, जो मैंने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में भी समझाया है, तो ये बन जाता है रेयर टू डेंसर और ये OB ऊपर और AB नीचे. OB इज रियल डेप्थ, AB इज अपैरेंट डेप्थ. इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बनता है रियल डेप्थ ऑन अपैरेंट डेप्थ.
स्टूडेंट्स, शिफ्ट यानी कि कितना ऊपर इमेज दिख रहा है, अगर ये हमें निकालना हो तो सीधा सीधा फॉर्मूला हमें लगाना है रियल डेप्थ माइनस अपारेंट डेप्थ। शिफ्ट रियल डेप्थ की जगह आई सिंपली यूज r डॉट डी रियल डेप्थ। अपारेंट डेप्थ की जगह मैंने लिखा है रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हमने डिराइव किया था यहाँ लास्ट फॉर्मूले में। अपारेंट डेप्थ को मैंने लिखा है रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों में रियल डेप्थ कॉमन ले लीजिए, so the formula for shift becomes real depth in bracket 1 minus 1 on refractive index. Start. Okay students, now let's start with the numericals of this chapter. As I said you, I'll be doing every alternate numerical. तो पहले numerical से शुरू करते हैं। पहला numerical बहुत easy है, हमें दिया है refractive index of diamond with respect to A is 2.42. हमें दिया है refractive index of glass with respect to A is 1.51. स्टूडेंट्स रिमेंबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये मतलब भी होता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितने गुना कम हो जाती है उस मीडियम में कंपेयर्ड टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। स्टूडेंट्स, चैप्टर इज ओवर, लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। जैसा मैंने कहा था मैं एवरी ऑल्टरनेट न्यूमेरिकल यहाँ करूँगा, तो मैं पहले न्यूमेरिकल से शुरू कर रहा हूँ। वी आर गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक मतलब और भी होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में कितने गुना हो जाती है, कितने गुना कम होती है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हम सबको पता है 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड। डायमंड में उसका 2.42 टाइम्स कम, ग्लास में उसका 1.51 टाइम्स कम हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट। हमको दिया है डायमंड में ग्लास के रिस्पेक्ट में कितने गुना कम हो गया। फॉर दिस रिमेंबर, refractive index of diamond should be up, refractive index of glass should be down. जो राइट हैंड साइड पे refractive index होता है वो ऊपर, जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो नीचे। Substitute the values, we get 1.60 times, यानी डायमंड में ग्लास के कंपैरिजन में स्पीड ऑफ लाइट 1.60 टाइम्स ज्यादा तेज होगी। That's answer for the first part of the question. Third part, हमको दिया है ray has shifted by 15 degree, deviated by 15 degree. Basically ये deviation word जब बोले तो हमको angle of incidence minus angle of refraction करना चाहिए। deviation is 15 degree, angle of incidence 60 है। पहला पार्ट what is angle of refraction, आप यहाँ 60 रख के सॉल्व कर सकते हैं, angle of refraction 45 डिग्री आएगा। सेकेंड पार्ट में critical angle पूछा है, cosec of critical angle we derived is refractive index. refractive index का फॉर्मूला sin i on sin r भी होता है। i और r की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके cosec इनवर्स निकाल लीजिए। IC और critical angle comes out to be 54.7 degree. आंसर फॉर थर्ड पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला रियल डेप्थ और अपारेंट डेप्थ हमने अभी डिराइव किया है। रियल डेप्थ दी है 12.5 सेंटीमीटर्स, अपारेंट डेप्थ दी है 9.4 सेंटीमीटर्स। सीधा सीधा डिवीजन है, वी गेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज 1.33। सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर्मूला वही लगेगा, मैंने रियल डेप्थ की जगह r डॉट डी लिखना शुरू किया है, अपारेंट डेप्थ की जगह a डॉट डी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, रियल डेप्थ दी है, अपारेंट डेप्थ सॉल्व करके निकाला, इट कम्स आउट टू बी 8 सेंटीमीटर्स। बट क्वेश्चन में शिफ्ट पूछा है, तो शिफ्ट का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ माइनस अपारेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ 12 है, 8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर कम्स आउट टू बी 4 सेंटीमीटर्स। नाइन्थ क्वेश्चन, रियल डेप्थ 14 दी है, अपारेंट डेप्थ 10 दी है। पहला पार्ट है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सीधा सीधा डिवीजन करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम्स आउट टू बी 1.4। अब उन्होंने रियल डेप्थ चेंज कर दिया, सिंस मीडियम वही है इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 रख के, रियल डेप्थ 21 रख के, न्यू अपारेंट डेप्थ निकाल लीजिए, व्हिच कम्स आउट टू बी 15 सेंटीमीटर्स। आपको मालूम है कैलकुलेटर्स अलाउड है, आप इजीली कैलकुलेट कर भी सकते हैं। माइक्रोस्कोप आपसे कहा गया है क्वेश्चन में इज इनिशियली प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, लेकिन अपारेंट डेप्थ तो 15 पे मिल रहा है, दैट मीन्स माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करना चाहिए ऊपर की तरफ बाय 5 सेंटीमीटर्स।
क्योंकि 10 से 15 जाने के लिए आपको 5 सेंटीमीटर ऊपर माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन 11th में हमें दिया है एक प्रिज्म। रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली कहाँ है? दैट मीन्स 90 डिग्री पे गिरता है। जब 90 डिग्री पे गिरता है तो अनडेविएटेड, सीधा जाता है। फिर उन्होंने कहा है कि इट ओवरलैप्स द मीडियम, दैट मीन्स ये क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। दैट अदर मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। प्लीज रिमेंबर, इसे ग्रेजिंग एंगल भी कहते हैं, जब रे ऑफ लाइट सरफेस पे ही होके निकल जाता है। दिस इज 90 डिग्री दिया है, ये क्रिटिकल एंगल है। ये 41.8 मैंने निकाला है क्योंकि हमें गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। मैंने ये फॉर्मूला लगाया है, क्रिटिकल एंगल कम्स आउट टू बी 41.8। न्यूमेरिकल में हमें पूछा है व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ये पूछा हुआ है। इफ यू चेक आउट, ये जो ट्राइंगल है AMT, इसमें ये एंगल पता है हमें, ये क्रिटिकल एंगल हम निकाल चुके हैं। अगर मैं ये एंगल निकाल लूं तो ये एंगल इजीली सॉल्व हो जाएगा। दिस होल एंगल इज 90, vertically opposite angles. So angle ATM, as you see, ATM is 90 minus 41.8, which is 48.1. आप इस एंगल को 90 में से माइनस कर दीजिए, एंगल ऑफ प्रिज्म आ जाएगा। एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल MAT is 90 minus 48.1. आंसर आपके सामने है 41.8 डिग्रीज। 13th क्वेश्चन और भी सिंपल है। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5, क्रिटिकल एंगल पूछा है। ये फॉर्मूला हम कई बार यूज कर चुके हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली अब लिख दिया है क्रिटिकल एंगल इज 41.8 डिग्रीज। 15th क्वेश्चन में हमें दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। हमसे पूछा गया है व्हाट इज क्रिटिकल एंगल इफ द रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर। तो सिंस रे इज मूविंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर, मैंने आपसे कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर जो यहाँ लिखा जाता है उसका ऊपर आएगा, जो यहाँ लिखा जाता है उसका नीचे। डिवाइड करिए, वी गेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल चुका है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ओवर हियर, दिस इज कोसेक IC, solve it out, critical angle comes out to be 65.5 degrees. Answer for 15th question. 17th and the last question, हमें एक कंटेनर दिया है जिसके नीचे एक बल्ब है। हमें पूछा जाता है कि कितने एरिया को वो इल्यूमिनेट कर देगा। प्लीज रिमेंबर, हमें ये मानना है, ये दिया है कि वो लाइट बाहर नहीं जा रही है, इस सरफेस पे ही घूम रही है। इन अदर वर्ड्स, दिस एंगल इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 है, दैट मीन्स ये होना चाहिए क्रिटिकल एंगल। हमें ये दी है 80 सेंटीमीटर्स, मैंने इसे R मान लिया है क्योंकि इट्स अ सर्कुलर मैच। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। सॉल्विंग इट आउट, क्रिटिकल एंगल कम्स आउट टू बी 48.75। अगर मैं इस क्रिटिकल एंगल जो कि मैंने निकाला है 48.75, मैं tan ऑफ दिस ट्रायंगल निकाल दूं। Tan of critical angle, formula for tan is perpendicular upon base, which is R on 80. Substitute the value, radius comes out to be 0.9122 meters. Area of circle चाहिए है, here's the formula pi r square. Substitute the value, the area comes out to be 2.6 meter square. इसके साथ we are over with the chapter. Please don't forget to like and subscribe the channel. We'll be starting with a new chapter tomorrow. If you have any doubts, अगर आपके पास कोई doubts हैं, कोई numericals में problems है, theoretically कोई problem है, please comment में डालिए so that I can clear it up. Thank you.